everyone, I am Dr. Anchal Chandak, and in this video I am going to talk about a very important person who has coined the term new criticism. Yes, I am talking about J.C. Ransom. J.C. Ransom has coined the term new criticism in his most famous book New Criticism, published in 1941. J.C. Ransom was a faculty member of Kenyon College, and he was the first editor of the Kenyon Review. J.C. Ransom was a member of a southern literary group, Fugitives. There were 16 writers in this group, and these writers started a magazine named The Fugitive. Other important persons of this group are Ellen Tate and Robert Penn Warren. J.C. Ransom has written several important books, but in this video I will discuss three important books of J.C. Ransom. First is Volume of Poetry. In this work we find poems on God and Robert Frost and Robert Graves praised this book. रॉबर्ट फ्रोस्ट और रॉबर्ट ग्रेव्स ने इस बुक की प्रशंसा की है. द सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ J.C. Ransom is New Criticism, published in 1941. In this book, he has coined the term New Criticism, and he has also given the name to this theory, New Criticism. The third important book of J.C. Ransom is Poetry, A Note on Ontology. In this book, he has discussed several concepts. First, he has divided the poetry into three parts. He has given three types of poem. The first is physical poem. Physical poem is all about physical things or objects. In these types of poem, we find that the poet has described about the physical things or the objects only. He doesn't deal with any idea. इस तरीके की पोएम में जो पोएट हैं वो किसी भी आइडिया या किसी भी खास इमोशन की बात नहीं करते हैं. वे सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को या किसी फिजिकल थिंग्स को इस पोएम में डिस्क्राइब करते हैं. द मोस्ट important thing about this poem is that the poem is not too much interesting, क्योंकि ये जो पोएम होती है वो सिर्फ फिजिकल थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स के बारे में ही होती है, इसलिए वो पोएम जो है इतनी इंटरेस्टिंग भी नहीं बन पाती है. हिल्डा डूलिटिल्स सी पॉपीज is the best example of physical poem. In this poem, Sea Poppies, Hilda Doolittle has given the description of a plant which is named as poppies. Poppies plant का इसमें वर्णन दिया गया है और उसमें हिल्डा डूलिटिल क्या करती हैं, इस प्लांट के फ्लावर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन देती हैं, इसकी लीव्स के बारे में डिस्क्रिप्शन देती हैं, और जो फ्लावर्स नीचे सैंड पर गिरे हुए होते हैं तो उन चीजों के बारे में ये डिस्क्रिप्शन देती है. इट इज द सी गार्डन पोएम एंड शी हैज गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द सराउंडिंग थिंग्स ऑफ द पॉपीज, एंड इसके जितने भी फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हमको डिस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलता है. सो इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल पोएम. द नेक्स्ट टाइप ऑफ पोएम इज प्लेटोनिक पोएम. Platonic poem always deals with idea, reason, logic. We can find a specific idea in the Platonic poem.
इस पोयम में हमको कोई आइडिया, कोई रीजन, कोई लॉजिक, कोई एक मीनिंग हमको देखने के लिए मिलता है, दैट इज कॉल्ड प्लेटोनिक पोयम. एंड J.C. Ransom says that we can find the Platonic poem in the Victorian era and in the Romantic era. All the poems of the Romantic era and the Victorian era can be put in the category of the Platonic poem. And Ode on a Grecian Urn is the best example of the Platonic poem. Ode on a Grecian Urn by John Keats. As we know, ये जो है ये इस प्लेटोनिक पोयम का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. और ऑन अ ग्रेशियन अर्न में हम देखते हैं कि जो जॉन किट्स हैं वो क्या करते हैं, एक अर्न के ऊपर जो चित्र बनाए गए हैं उन चीज़ों का डिस्क्रिप्शन देते हैं और उन चीज़ों में वो क्या इंक्लूड करते हैं, वो लवर्स को इंक्लूड करते हैं. फिर उसके बाद में वो इस पोयम को एक फिलोसॉफिक टच देते हैं. एंड वी सी द आइडिया दैट truth is beauty and beauty is truth in the poem Ode on a Grecian Urn. That is what Satyam Shivam Sundaram. So we can see the deep meaning in the poem Ode on a Grecian Urn. That is the Platonic poem. Now we have read about Platonic poem and physical poem, but J.C. Ransom is not in the favor of physical poem or in the Platonic poem. J.C. Ransom जो है वो ना ही फिजिकल पोयम के फेवर में है, ना ही वो प्लेटोनिक पोयम के फेवर में है. ही इज इन द फेवर ऑफ मेटाफिजिकल पोयम. मेटाफिजिकल पोयम. नाउ व्हाट इज मेटाफिजिकल पोयम? प्लेटोनिक पोयम और फिजिकल पोयम में हमने क्या देखा है, फिजिकल पोयम इज too much about the physical things or the objects, and Platonic poem is too much about the ideas, logics and reasons. But metaphysical poem is the mixture of both. मेटाफिजिकल पोयम जो है वो दोनों ही चीज़ों का मिक्सचर है. यहाँ पर आपको आइडिया भी देखने को मिलेगा और ऑब्जेक्ट्स भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे. ये रीजन एंड फीलिंग का जो है एक कॉम्बिनेशन है. We can say that it is the mixture of idea and object, reason and feeling. That is what metaphysical poem is. And J.C. Ransom is in the favor of metaphysical poem. He praises the concepts. वो concepts की तारीफ करते हैं जो कि metaphysical poems में metaphysical poets ने use किए हैं. And John Donne is the greatest metaphysical poet who has written the great poem A Valediction Forbidding Mourning. In that poem, we can see that the poet has compared the lovers to the lakes of compass. उस poem में क्या किया है, कवि ने एक lovers के पेयर का comparison एक compass के lakes से किया है. So we can see how wonderful this comparison is. How can a person do comparison between these two different things? कहाँ लवर है और कहाँ पर एक कंपास के लेग्स हैं, ये दोनों ही चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा अलग हैं. बट जॉन डन ने इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कंपेयर किया है. दैट इज व्हाट कंसीट इज. और J.C. रैनसम जो है वो इसके फेवर में है. सो ये 3 प्रकार की पोएम्स को J.C. रैनसम ने डिस्कस किया है. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज डिस्कस्ड इन दिस बुक इज 2 टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म. J.C. रैनसम ने 2 क्रिटिसिज्म ऐसे बताए हैं जिसके फेवर में वो नहीं है. उसके बाद उन्होंने ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म को भी डिस्कस किया है जिसके फेवर में वो है. 2 टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म ऐसे हैं जिनके फेवर में वो नहीं है. कौन से हैं वो क्रिटिसिज्म? एक है फिलोसॉफिकल क्रिटिसिज्म और दूसरा है मॉरल क्रिटिसिज्म. फिलोसॉफिकल क्रिटिसिज्म में क्या होता है कि ये क्रिटिसिज्म जो है वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि इट इज साइंटिफिक. ऐसा लगता है मानो ये साइंटिफिक है, लेकिन ये ओरिजिनल में साइंटिफिक नहीं होता है. दैट्स व्हाई J.C. Ransom is not in the favor of philosophical criticism, and moral criticism is based on rules and ideology.
मॉरल क्रिटिसिज्म रूल्स और आइडियोलॉजी पर बेस्ड होता है। तो अगर कोई क्रिटिसिज्म आपकी आइडियोलॉजी पर बेस्ड है तो वो क्रिटिसिज्म कभी भी फेयर क्रिटिसिज्म हो ही नहीं सकता है, बिकॉज यू विल जज दैट वर्क अकॉर्डिंग टू योर आइडियोलॉजी। दैट इज व्हाट मॉरल क्रिटिसिज्म इज। एंड जेसी रैनसम जो है वो इन दोनों क्रिटिसिज्म के फेवर में नहीं है। ही लाइक्स टू डू ontological criticism. What is the ontological criticism? Ontological criticism. Ontological criticism क्या होता है? As I have already made videos on new criticism and the other important new critics. So अगर आपने वे सारी वीडियोस देख ली हैं तो आपको ontological criticism समझना इजी होगा, बिकॉज ontological criticism वही होता है जो न्यू क्रिटिसिज्म होता है। न्यू क्रिटिसिज्म में हमने क्या देखा है कि न्यू क्रिटिसिज्म में जो राइटर्स हैं, जो क्रिटिक्स हैं, उन्होंने किस चीज के ऊपर फोकस किया है? उन्होंने क्लोज रीडिंग के ऊपर फोकस किया है। एंड दे से दैट द टेक्स्ट इज ऑटोटेलिक। एक टेक्स्ट जो है वो ऑटोटेलिक होती है। अगर आपको एक टेक्स्ट को क्रिटिसाइज करना है तो आपको उस टेक्स्ट की ही क्लोज रीडिंग करना है और आपको उस टेक्स्ट से बाहर किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देना है। दैट इज द न्यू क्रिटिसिज्म। एंड द ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म भी यही चीज होती है। ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म कहता है कि एक जो टेक्स्ट होता है उसमें उसकी जो ऑन्टोलॉजी होती है, ontology is the essence of the text. ontology में ही आपको उस टेक्स्ट का इसेंस मिल जाता है, उस टेक्स्ट का मीनिंग आपको क्या मिलता है? ontology में ही मिल जाता है, क्योंकि वो जो टेक्स्ट है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है? वो अपनी ontology में ही एग्जिस्ट करती है। तो अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को क्रिटिसाइज करना है तो आपको उस टेक्स्ट के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसकी ऑन्टोलॉजी को समझने की जरूरत है। मीन्स उसके मीनिंग को समझने की जरूरत है, उसके पूरे इसेंस को, उसके एग्जिस्टेंस को समझने की जरूरत है। Only after that you can do a fair criticism. And J.C. Ransom is in the favor of ontological criticism. He has given a new term in this book, paraphrasable core. पैराफ्रेजिबल कोर क्या होता है? एक जो टेक्स्ट होती है या जो पोयम होती है वो दो चीजों से मिलकर बनती है। क्या होता है? एक होता है उसका टेक्सचर और एक होता है उसका स्ट्रक्चर। एक होता है उसका टेक्सचर, एक होता है उसका स्ट्रक्चर। इन दोनों चीजों से मिलकर क्या बनती है? एक पोयम बनती है। और यही इनकी ऑन्टोलॉजी भी हम बोल सकते हैं। तो अगर आप उसके टेक्सचर और स्ट्रक्चर दोनों को समझ जाओगे मतलब आप उसकी ऑन्टोलॉजी को समझ गए। और बस आप इनको समझने के बाद में आप एक सही क्रिटिसिज्म वहां कर सकते हैं। तो J.C. रैनसम जो बोलते हैं कि टेक्सचर और स्ट्रक्चर से मिलकर एक पोयम बनती है। और टेक्सचर में क्या आता है? टेक्सचर में आएगा आपकी सारी लिटरेरी डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइस, राइम, रिदम, ये सभी चीजें कहाँ आती है? टेक्सचर में आती है। और स्ट्रक्चर में क्या आता है? स्ट्रक्चर में जो उस पोयम के अंदर जो लॉजिक है, जो उसका मीनिंग है, जो आइडिया है, वो सब कहाँ आता है? स्ट्रक्चर में आता है। तो अगर आप क्या करते हैं, एक पोयम से उसका टेक्सचर निकाल देते हैं, मतलब आपने उससे उसकी लिटरेरी डिवाइसेस, राइम, रिदम, ये सारी चीजें आपने वहां से निकाल दी हैं। उसके बाद पोयम में क्या बचा है? सिर्फ पोयम में बच रहा है स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? दैट स्ट्रक्चर इज द पैराफ्रेजिबल कोड। एंड J.C. रैनसम सेज दैट if you separate the texture from the structure, अगर आप टेक्सचर से उसकी स्ट्रक्चर को गायब कर देते हो तो वो पोयम बचेगी ही नहीं, वो एक पोयम नहीं बचेगी। एंड that's why you cannot separate the texture and the structure. जो चीज क्लिनिट ब्रुक्स ने अपने कॉन्सेप्ट हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज में बोली है, वही चीज J.C. रैनसम ने पैराफ्रेजिबल कोर में बोली है। यू कैन नॉट सेपरेट द टेक्सचर एंड द स्ट्रक्चर। पैराफ्रेज क्या होता है? पैराफ्रेज होता है
जब कभी भी आप एक पोयम को प्रोज के फॉर्म में लिख देते हैं, दैट इज द पैराफ्रेज। तो जब आप एक पोयम को प्रोज के फॉर्म में लिख देंगे तो उसकी जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो सारी पोयम में से चली जाएगी, वहां आपको सिर्फ जो उसका मीनिंग है, आइडिया है, वही देखने को मिलेगा। तो वो पोयम तो पोयम बचेगी ही नहीं। दैट्स व्हाई यू कैन नॉट सेपरेट द टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर। दिस इज पैराफ्रेजेबल कोड। The third concept which is discussed in this book, Poetry, A Note on Ontology, is about two types of discourse. Two types of discourse में कौन से discourse आ जाएंगे? एक आता है poetic discourse और दूसरा होता है साइंटिफिक डिस्कोर्स। पोएटिक डिस्कोर्स में क्या होता है, आप किसी पोयम को अपने तरीके से पढ़ते हैं। पोएटिक डिस्कोर्स में यू कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द पोयम। और साइंटिफिक डिस्कोर्स में क्या होता है, उसका एक मीनिंग जो है वो ऑथराइज होता है, यू कैन नॉट चेंज द मीनिंग। एंड जे.सी. रैनसम इज इन द फेवर ऑफ पोएटिक डिस्कोर्स। वो कहते हैं कि आपको केवल एक टेक्स्ट को पढ़ना है, एक पोयम को पढ़ना है, एंड यू शुड एनालाइज द पोयम अकॉर्डिंग टू योर रीडिंग। और वो कहते हैं कि अगर आप साइंटिफिक डिस्कोर्स के अकॉर्डिंग उस पोयम को पढ़ते हैं तो उस पोयम का जो मीनिंग है वो फिक्स मीनिंग है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप फिक्स मीनिंग को ही पढ़ते रहेंगे तो लिटरेचर जो है वो ग्रोथ कैसे करेगा। सो ही इज इन द फेवर ऑफ पोएटिक डिस्कोर्स। सो इट इज ऑल अबाउट जे.सी. रैनसम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज डू इट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I will meet you soon with my another video. Till then, enjoy the life with literature. Thank you.